Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and very good morning to all of you. Me, your science teacher of class 5 from Muhammadi Girls School. Students, before starting the class, follow this instruction. Enter your ID and password properly with correct name. You all must attend the class because your attendance will be marked. If you have any difficulty, you ask me questions in chat box. Be attentive and do all work in copy in proper way on the time. Okay, beta? Now, students, this is your second unit, unit number 2, microorganism, health and diseases. This chapter present in page number 11 to 20. Okay, beta? Now open your book. Now, look at the screen. Students, you look some foods in this picture. The man is eating the different types of the food. What do you think? Is it is healthy or not? How do you know that these are healthy food? Students, we need food every day. We need food to get energy, to grow and help our body remain healthy by fighting the diseases. Different food have the different nutrients that help us in the different ways. For good health, our diet should have all the nutrients that our body needed in a right quantity, our food. Okay बेटा, आपने आज जो भी नाश्ता किया, रात में आपने जो भी डिनर में मील लिया था, क्या आपको पता है कि वो कैसा था? क्या वो हेल्दी था कि वो अनहेल्दी था? आपको खाने की ज़रूरत पेश आती है, आपको भूख लगती है, आप खाना खाते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आप राइट क्वांटिटी में, राइट अमाउंट में खाना खा रहे हैं या आप जो भी खाना खा रहे हैं आप सही टाइम पे खा रहे हैं. So in this chapter we have discussed about the different type of the food groups, balanced diet, और अगर हम खाना सही तरीके से ना खाएं तो ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ दिस ग्रुप ऑफ द फूड ग्रुप्स the many diseases caused. Okay beta, now what are the objectives of the human? By the end of the unit, you all are able to learn, inshallah, a balanced diet is healthy for good health. There are ways to preserve food to keep it clear from germs. There are many ways of keeping healthy. Some diseases are caused by microorganisms. Some microorganisms are useful for us. Diseases are spread in number of ways but can also be controlled. Okay, beta? Now, students, our food are classified into the 6 different groups. Okay, beta? This food triangle shows how much of each food groups you should eat. You can see in the bottom of the triangle the carbohydrates group. You can see the different types of the grain. They give us quick energy from the bottom to top. The second group is contain the fruit and vegetables. They are good source of vitamins. This group consists of the proteins and dairy. The proteins are found in eggs, pearls, and the meat. They help our body to make new cells. Okay. Now the dairy foods. The dairy foods like the yogurt, milk make our bones strong and healthy. And at the last, the top of the food triangle, this food group consists of the fats and salts. Fats give our body energy to store. They also help our body to warm. ये ट्राइंगल जो आपको अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है ये बहुत सारे फूड ग्रुप्स पे डिपेंड कर रहा है. सबसे पहला जो बॉटम में आप देख रहे हैं वो ग्रेन्स का है जिसमें आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ग्रेन्स देख रहे हैं. फिर हम ऊपर इसके देखते हैं तो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स नज़र आ रहे हैं. इसके ऊपर हमें मिल्क और डेयरी फूड्स नज़र आ रहे हैं और उसके बाद हमारे प्रोटीन फूड्स नज़र आ रहे हैं. और सबसे लास्ट में सबसे टॉप जो बिल्कुल लो क्वांटिटी में है वो फैट्स ऑयल है हमारा और शुगर के ऊपर डिपेंड करता है. यानी हमें कितनी मिकदार में अपने फूड को लेना है ये ट्राइंगल हमें शो कर रहा है. ओके बेटा. ओके, नाउ व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ द फूड? फूड हेल्प्स आवर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट द जर्म्स.
जो हम खाना खाते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर जो हमारी जरासीम है उसके लिए एक प्रोटेक्टिव तौर पे काम करता है, वो फाइट करता है जर्म्स के तौर पर. फूड हेल्प्स टू बिल्ड अप द पर्टिकुलर सेल्स. हमारी बॉडी में, एज यू नो वेरी वेल, आवर बॉडी मेक अप द डिफरेंट टाइप ऑफ द सेल. सो द फूड हेल्प्स टू बिल्ड करता है पर्टिकुलर सेल्स को. नाउ द नेक्स्ट इज द फूड बिल्ड फैट्स इन आवर बॉडी. फैट्स हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स के मौजूद होते हैं जो बिल्ड करता है. एंड द फूड गिव अस एनर्जी. ऑफ कोर्सली बेटा, द फूड गिव अस एनर्जी. अगर हम खाना नहीं खाएंगे, हम प्रॉपर फूड नहीं लेंगे तो हमारे अंदर एनर्जी नहीं होगी. सो द फूड गिव अस एनर्जी एंड फूड हेल्प अस टू ग्रो. हम सही खाना सही क्वांटिटी में नहीं लेंगे तो कैसे ग्रो करेंगे? छोटे बच्चे छोटे ही रह जाएंगे, ना उनकी हाइट बढ़ेगी ना वेट बढ़ेगा और वो प्रॉपर तरीके से ग्रो नहीं करेंगे. सो दीज ऑल आर द इम्पोर्टेंस ऑफ द फूड, हाउ द फूड हेल्प अस इन द डिफरेंट वेज. ओके बेटा. नाउ बेटा, व्हाट इज द बैलेंस डाइट? अब हमें खाना कैसा खाना चाहिए? Actually, the students, our food consists of the different type of the substances, and this is called the nutrient. This is called the nutrient. Okay, beta. You can see the picture of the different type of the food that contain the different type of the substances. हमारा जो food होता है वो different type के substances के ऊपर consist करता है, and these are the different type of the food. And what is the balanced diet? A balanced diet means eating the right variety of the food in the right amount. हमारा बैलेंस डाइट कब कहलाएगा? जब हम राइट फूड खाएं, राइट वैरायटी में खाएं एंड इन द राइट अमाउंट में खाएं. एक चीज़ हम बहुत ज़्यादा खाए जा रहे हैं और दूसरी चीज़ हम ना थोड़ी मिकदार में खाएं तो हमारे अंदर उस चीज़ की डेफिशिएंसी हो जाएगी जो हम कम ले रहे होंगे. सो हमारी बैलेंस डाइट जब होगी जब हम राइट वैरायटी इन द राइट अमाउंट में खाएं. Eating balanced diet help us to be fit and healthy. Of course, जब हम balanced diet हम लेंगे तो वो हमारी बॉडी को फिट रखेगा और हेल्दी रखेगा. सो हमने अभी क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि फूड हमारे बॉडी में क्या इम्पोर्टेंस होती है. फूड जितने भी हमारे घर में मौजूद हैं या जितने भी हम खाने खाते हैं वो डिफरेंट टाइप के फूड ग्रुप्स में शो किए गए हैं. हमें कितनी मिकदार में खाना है वो हमें फूड पैरामिड यानी फूड ट्रायंगल के जरिए हमें शो किया गया. नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. एंड व्हाट इज द आवर टॉपिक? व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म? ओके बेटा, let's think about that. Have you ever thought how milk gets sour if it is left out of the open during the not weather? Why is the vegetables and fruit rot? Why does the garbage sink? Why do we catch flu? It is because of the germs. Do you know what is the germs? Okay. जब भी आप दूध को खुला छोड़ देते हैं, बाहर रख देते हैं, तो थोड़ी देर बाद आपकी मम्मा आपको कहती हैं अरे दूध खराब हो गया. ऐसे ही कहते हैं ना बेटा कि दूध खराब हो गया. अगर फ्रिज में प्रॉपर तरीके से वॉश करके वेजिटेबल्स ना रखी जाएं, फ्रूट्स ना रखे जाए तो कहा जाता है कि जनाब ये चीज़ें ख़राब हो गई. ओके. सो कैसे ये तमाम चीज़ें ख़राब हो जाती हैं? कैसे ये तमाम चीज़ें हमारे खाने के काबिल नहीं रहती हैं? बिकॉज हमारी इन्वायरमेंट में एक बहुत छोटे से लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं जो कि इन चीज़ों को ख़राब कर देते हैं या समटाइम ये हमारे लिए बेनिफिशियल भी होते हैं. एंड दिस इज कॉल्ड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. दिस इज कॉल्ड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ओके बेटा. नाउ look at this slide. Micro means very small. Micro means small. And the organism means living being. It means that क्या मतलब हुआ इस बात का कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हमें डेफिनेशन तो इसकी वर्ड से ही पता चल रही है. हमें पता चल रहा है कि माइक्रो मीन्स स्मॉल एंड ऑर्गेनिज्म मीन्स लिविंग बीइंग, यानी वो लिविंग बीइंग जो बहुत स्मॉल होते हैं. सो द डेफिनेशन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज there are millions of organisms on the planet Earth. Some of them are extremely small in size and can't be seen with the naked eye. हम अपनी खुली आंख से उनको नहीं देख सकते उन ऑर्गेनिज्म को. And these are called
microorganism. These are called microorganism. यानी कि मिलियन ऑर्गेनिज्म ऐसे हमारे अर्थ में प्लैनेट में हैं जो कि हम इतने साइज में छोटे 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 से हैं कि हम उनको अपनी खुली आंख से नहीं देख सकते. दिस इज कॉल्ड अ microorganism. Microorganism are present in the soil. Okay, अब कहा जा रहा है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ कहाँ पाए जा सकते हैं. दे आर फाउंड इन द सॉइल, air, water, or the surface of the plants, animals and the humans, and even inside their bodies. यानी ना ये सिर्फ प्लांट्स के अंदर मौजूद होते हैं, ना ये सिर्फ वाटर के अंदर, एयर के अंदर मौजूद होते हैं, ये इनसाइड द बॉडी यानी ये बॉडी के अंदर भी मौजूद होते हैं, ना सिर्फ सरफेस के अंदर. They can only be seen with the help of an instrument called the microscope. क्योंकि हम इसको खुली आंख से नहीं देख सकते, क्योंकि ये इतने छोटे होते हैं कि हम अपनी खुली आंख से नहीं देख सकते. तो इसको देखने के लिए जो हमें इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होती है, इट इज कॉल्ड माइक्रोस्कोप. इट इज कॉल्ड माइक्रोस्कोप. यस. नाउ microbiology and the microbiologist. What is the microbiology and what is the microbiologist? The microbiology is the branch of the science that deals with the study of the microorganism. Microorganism के बारे में जो हम जिस साइंस के ब्रांच में पढ़ते हैं वो माइक्रोबायोलॉजी कहलाती है. And जो a person who studies the microbiology is called as a microbiologist. वो जो पर्सन इसके बारे में पढ़ता है वो माइक्रोबायोलॉजिस्ट कहलाता है. ओके बेटा, दिस इज फॉर योर इंफॉर्मेशन. नाउ यू कैन सी दैट दिस इज द पिक्चर ऑफ द माइक्रोस्कोप. You can see here is if you put some slide and you can see the different types of the virus, bacteria and the fungi. You can see on this slide. You can see the different types of the germs in this slide if you see with the help of the microscope. Okay. Now this is the microscope and we can able to see from here. Okay beta. A microscope make things look bigger in size. Therefore, we can say that a microscope magnifies the object. Magnify means इसको large size में कर देता है, बड़ा कर देता है. Some living things are made up of only one cell called the unicellular. Okay बेटा, जो living organism एक सेल से मिलकर बने होते हैं, that is called the unicellular, and we can able to see with the help of the microscope. तो आपने अच्छी तरह समझा कि माइक्रोस्कोप क्या होता है. माइक्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि मैग्नीफाई करता है, ऑब्जेक्ट को बड़ा कर देता है जो हमें खुली आंख से दिखाई नहीं देते. कि बेटा, नाउ द टाइप्स ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं. ठीक है, कितने टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं. These are found in the bacteria, protozoa, fungi, algae and viruses. These are bacteria, protozoa, fungi, algae. Okay beta. Now move to the next topic. The number one is virus. Now what is the virus? Nowadays you are hearing the word the virus. आजकल आप बहुत सुन रहे हैं कि ये वायरस है, वो वायरस है, कोरोना वायरस है. So in this chapter आप पढ़ने जा रहे हैं कि वायरस होता क्या है. It is the simplest of the all microorganism. ये बहुत सादा होता है तमाम microorganism में. They can grow and survive only when they are in living cells of the organism. ये सिर्फ उसी वक्त ग्रो कर सकता है, ये सरवाइव कर सकता है जो वो किसी लिविंग सेल यानी कि जानदार चीज़ के अंदर होता है. ये डेड बॉडीज के ऊपर नहीं ग्रो कर सकता. ठीक है बेटा. वायरस क्या होता है? सबसे सिंपल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है. और ये कहाँ ग्रो करता है? ये ग्रो करता है लिविंग सेल के अंदर. ओके. दे मल्टीप्लाई रैपिडली इन द वार्म एंड द मॉइस्ट प्लेसेस. ये मल्टीप्लाई करता है बहुत जल्द, यानी कि अगर एक है तो वो 2 में डिवाइड होता है, 2 है तो वो 4 में डिवाइड होता है, 4 है तो वो 8 में डिवाइड होता है. तो वो मल्टीप्लाई होता रहता है एंड इन द वार्म एंड द मॉइस्ट प्लेसेस पे होता है.
They are harmful to animals, plants and cause the many diseases. वायरसेस जो होते हैं वो बहुत हार्मफुल होते हैं ह्यूमंस के लिए, एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए, बिकॉज ये बहुत सारी डिजीज को क्या करता है, ये बहुत सारी डिजीज को कॉज करता है. ठीक है बेटा. स्टूडेंट्स, दे आर द some illness caused by the virus in the human beings. Okay, you can see the measles. आपने नाम सुना होगा कि खसरा हो जाता है, चिकन पॉक्स हो जाता है, ये भी वायरस होता है. ठीक है, ये बीमारी भी वायरस होती है और ये मीजल्स है. इसके एग्जाम्पल्स जो वायरस की है मीजल्स है और जो इसके कॉज होती है डिजीज चिकन पॉक्स है एंड इन्फ्लुएंजा है. ओके बेटा. नाउ the next are coronavirus. Nowadays आप बहुत अच्छी तरह सुन रहे हैं कि कोरोना वायरस है, इसकी वैक्सीनेशन हमें करवानी है. तो बेटा ये भी एक वायरस है जो कि पर्सन टू पर्सन बॉडी के अंदर जा सकता है. जब अगर हम प्रॉपर तरीके से मास्क ना पहने, हम वैक्सीनेशन न करवाएं या हम अपने हाथों को सैनिटाइज ना करें तो क्या होगा, खुदा न खासा ये वायरस हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो सकता है और ये हमारी बॉडी को बहुत हार्मफुल कर सकता है बिकॉज इट इज़ वेरी डेंजरस फॉर अवर रिस्पायरेटरी ऑर्गन. ये हमारे रिस्पायरेटरी ऑर्गन के ऊपर अटैक करता है और हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम को डैमेज कर देता है. ओके, सो the corona is a virus as it is infected in our lungs and create the many harmful diseases. Okay beta. Now the next is bacteria. What is the bacteria? You can see in this picture the bacteria, there are the different type of the bacteria shapes. Some are the round in shape, some are the rod in shape, some are the round, some are the spiral shapes. So the mainly the three shapes present in the bacteria, and these all are unicellular organism, microorganism. They grow and multiply rapidly. Bacterial cells exist in three basic shapes as we have discussed. They can cause illness like typhoid, pneumonia, and what is this? This is the meningitis. Meningitis. What is the meningitis? आपने सुना होगा माइग्रेन का पेन हो रहा है. आपने बड़ों से सुना होगा कि हमें माइग्रेन का पेन हो रहा है. माइग्रेन के पेन में क्या होता है, समटाइम पीपल को वॉमिटिंग भी होती है, सर में दर्द भी होता है, पेट में दर्द भी होता है. सो दिस डिजीज इज कॉल्ड द मेनिंजाइटिस एंड नमूनिया. आपने बहुत अच्छी तरह सुना होगा कि नमूनिया हो जाता है जिसमें बहुत तेज फीवर हो जाता है. टाइफाइड है, इससे भी हमारे लंग्स बहुत इफेक्टेड हो जाते हैं एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द बैक्टीरिया. ये भी बैक्टीरिया की वजह से हो जाते हैं. ठीक है बेटा. अच्छा, some type of the bacteria may be the harmful, but not all are the bad. In fact, some bacteria are useful. Certain the types of the bacteria in our bodies protect us from other the harmful microorganisms. Just like that, you can see in this picture, this patient is involved in the pneumonia. Okay, and this is the disease typhoid and this is the meningitis. Okay, these all are the symptoms are involved the meningitis. Okay beta. Okay beta, let's suppose that के कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जैसे कि हम लोग ब्रश नहीं करें और उसके बाद प्लग हो जाता है और हमारे टीथ जो हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, डिकाइन हो जाते हैं. दैट्स वाई द बैक्टीरिया उसके ऊपर अटैक करता है और वो फूड जो है, जो हम खाना खाते हैं और ब्रश ना करने की वजह से वो बैक्टीरिया हमारे दांतों के ज़रिए दाखिल होकर हमारे अंदर हार्मफुल डिजीज़ पैदा कर देता है. ओके, सो बैक्टीरिया इस तरीके से भी हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है और हमारी माउथ के ज़रिए बहुत सारी डिजीज़ को पैदा कर देता है. ओके बेटा. नाउ the second kind of the microorganism. Okay, where is the bacteria places? कहाँ हम बैक्टीरिया को देख सकते हैं और हम पा सकते हैं because some bacteria are very very beneficial for us.
बैक्टीरिया इज प्रेजेंट इन ह्यूमन इंटेस्टाइन, हेल्प इन डाइजेशन। हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर, हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन इंटेस्टाइन के अंदर बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जो कि हमारे डाइजेशन प्रोसेस में बहुत हेल्पफुल होते हैं। ठीक है बेटा, यानी बैक्टीरिया सिर्फ हार्मफुल नहीं होते कि कुछ बैक्टीरिया जो बीमारियां फैला रहे हैं, अगर हम हाइजीन फूड नहीं लेते, अगर हम हेल्दी फूड्स नहीं लेते, हम जंक फूड्स लेते हैं, हम गंदे फूड्स खाते हैं, तो वो बैक्टीरिया तो हमारे ऊपर इफेक्ट करते हैं। मगर कुछ बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं जो हमारी लाइफ में हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। दही कैसे बनती है, दही कैसे बनती है, चीज़ कैसे बनती है, वो इन्हीं बैक्टीरियाज की वजह से होती है और जिस वजह से ये हमें मज़े की चीज़ें खाने को मिलती हैं। सो द बैक्टीरिया इज प्रेजेंट इन द ह्यूमन इंटेस्टाइन एंड दे इज हेल्पफुल फॉर द डाइजेस्टिव प्रोसेस एंड द बैक्टीरिया इन सॉइल ब्रेक डाउन द गार्बेज and the living organism into the simple nutrients. What is this means? The bacteria in the soil. कुछ बैक्टीरिया जो मिट्टी के अंदर मौजूद होते हैं, सॉइल के अंदर होते हैं, वो गार्बेज को ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, वो गार्बेज को ब्रेक डाउन करते हैं और लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए एक सिंपल फूड प्रोवाइड करते हैं। अगर ये बैक्टीरिया ना हो तो जो गार्बेज है वो तो ऐसे ही रहेगा और दुनिया बिल्कुल ख़राब, बदबूदार हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, ऐसे ही होगा ना। तो ये हमारे अल्लाह ताला का एक निज़ाम है कि ये बैक्टीरिया सॉइल के अंदर मौजूद होते हैं और गार्बेज को ब्रेक डाउन करते हैं और लिविंग ऑर्गेनिज्म जो वहाँ पर हैं वो उसको सिंपल न्यूट्रिएंट्स देते हैं। ठीक है, सो this is the another helpful bacteria. Some bacteria are used in making of cheese, yogurt and sour cream. अब हमें दही बनानी है तो दूध से दही कैसे बनता है? दूध से दही एक बैक्टीरिया की वजह से ही बनता है। ये चीज़, पनीर जो आप घर में मज़े मज़े का खाते हैं, ये हमारे यही बेनिफिशियल हेल्पफुल बैक्टीरिया की वजह से होता है। ठीक है बेटा, so these are the very helpful bacteria found in our environment. Now next microorganism is fungi. What is the fungi? Fungi, as you can see the bread, जब आप घर में अपनी डबल रोटी को देखते हैं वो कुछ दिनों के बाद तो बिल्कुल ख़राब हो जाती है, ऐसे ही होता है ना। What is this? This is the fungus, fungi. Okay, the fungi present in the different shape. The many types of the fungi present in the environment, but some fungi we have discussed in this chapter, in this class level. Okay, now what is the fungi? Some fungi are unicellular and some are multicellular. यानी कुछ fungi जो होते हैं वो unicellular होते हैं और some multicellular होते हैं. They can be microscopic and can be macroscopic. यानी वो जो कि जिनको हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं या मैक्रोस्कोपिक मीन्स जिनको हम खुली आंख से भी देख सकते हैं, विदाउट माइक्रोस्कोपिक भी देख सकते हैं। जो बहुत टाइनी होती है फंजाई उनको हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। Different groups of fungi, yeast, mushroom, molds, they can't make their own food. They get their food from the other organism on which they grow. अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म फंजाई के ये वो होते हैं जो अपनी खाना खुद नहीं बनाते, बल्कि जहाँ पर ये होते हैं ना वो वहीं पर ग्रो करते हैं और वहीं से फूड हासिल करते हैं। ठीक है बेटा, फंजाई अपना ये वाला जो इसकी टाइप है ईस्ट, मशरूम, मोल्ड्स, ये अपना खाना खुद नहीं बनाते बल्कि ये दूसरे ऑर्गेनिज्म से रहते हैं जहाँ पर ये ग्रो कर रहे होते हैं। ओके बेटा, ओके, you can see this food. Someone with the athlete's food should be able to run very fast like an athlete. On this opposites, this feet will be too itchy or the painful for him to run very fast. Athlete food is fungal infection of the skin. The fungi causes the skin to flap and itch. You can see this food. Sometimes कुछ peoples के आपने देखा होगा अगर आप ज़्यादा उसको ढक कर रखते हैं अपने पाँव को तो पाँव के नाखूनों के अंदर ये स्किन के अंदर छोटे छोटे से एक दाने इस तरीके से हो जाते हैं जिसको जब आप डॉक्टर को दिखाते हैं तो वो कहते हैं आपके पाँव में नेल्स में फंगस हो गया है. So this is caused by the bacteria. ये भी बैक्टीरिया की वजह से डिजीज होती है.
मेजॉरिटी ये एथलीट्स की वजह से होती है क्योंकि वो बहुत तेज दौड़ते हैं और वो अपने ऐसे शूज पहनते हैं या सॉक्स पहनते हैं जिसकी वजह से उनकी ज़्यादा देर पाँव को कवर रखने की वजह से उन पाँव में फंगस लग जाता है. ठीक है. Now, the next is how are the fungi useful for human beings? Some fungi are eaten. Fungi have to decompose the biodegradable litter and make soil fertile. What this means? Fungi has to decompose the biodegradable. इट मीन्स डैट कि बेटा जो भी ज़मीन के अंदर या जो भी ख़राब चीज़ें डेड बॉडीज़ होती हैं, अगर ये फंजाई ना हो तो वो जो डेड बॉडीज़ होती हैं या जो ख़राब चीज़ें गल सड़ जाती हैं कचरे के अंदर, तो फंजाई उसको डिकम्पोज करता है और ज़मीन को फर्टाइल या जरखेज़ करता है, ज़मीन को हेल्पफुल करता है कि वहाँ पर प्लांटेशन हो सके, वो फर्टाइल हो सके. So decompose means break down, तोड़ देना, and biodegradable litter means जो dead bodies होती हैं जो कि हम इनको रिवर्स कर सकते हैं, उनको हम काबिल कर सकें कि वो सॉइल के अंदर शामिल हो सके और सॉइल को फर्टाइल कर सकें. सपोज दैट कि अगर कोई जानदार चीज़ है और वो मर गई है, अगर वो ऐसे ही पड़ी हुई है, जब तक फंजाई उसको डिकम्पोज नहीं करेगा, उसके ऊपर अटैक नहीं करेगा, सो वो डिकम्पोज नहीं होगा, ब्रेक डाउन नहीं होगा और वो फर्टाइल के अंदर मिक्स नहीं होगा. ऐसे ही चीज़ें ख़राब होती रहेंगी या सड़ती रहेंगी और हमारा एनवायरनमेंट ख़राब हो जाएगा. तो फंजाई हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है बायोडिग्रेडेबल को डिकम्पोज करने के लिए और हमारी सॉइल को फर्टाइल करने के लिए. नाउ द थर्ड पॉइंट इज़ useful fungi. The fungi such as yeast are used in the food production. आपको पता है, आप जब भी कोई ब्रेड बनती है या पिज़्ज़ा बनता है या बलूटी बनती है तो ईस्ट उसके लिए काम करता है. खमीर जिसे कहते हैं ना, ईस्ट खमीर को फंजाई काम करता है फूड प्रोडक्शन के लिए इन द प्रोडक्शन ऑफ द एंटीबायोटिक्स. आपने सुना होगा, एंटीबायोटिक्स का नाम सुना होगा कि डॉक्टर हमें एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं या एंटीबायोटिक दवाएं तैयार हो रही हैं, तो डिफरेंट टाइप ऑफ द फंजाई यूज इन प्रोडक्शन ऑफ द एंटीबायोटिक्स. ओके बेटा. नाउ डिकम्पोजर. अब हम बात करेंगे decomposer की कि what are the decomposer? These are organisms that break down dead or the decaying organism and in doing so. अभी हमने बात की थी ना कि वो जो कि डेथ या decaying खराब चीजें, decaying कहते हैं सड़ी हुई या खराब चीजों को, और ब्रेक डाउन ऑफ द डेड यानी कि जो मर चुकी हैं चीजें, उनको ब्रेक डाउन करता है एंड दे कैरी आउट द नेचुरल प्रोसेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म, और उनको नेचुरल प्रोसेस की तरफ लेके आता है, जैसे कि अभी हमने बात की थी सॉइल को फर्टाइल करता है. ठीक है बेटा. सो यहाँ हमने एक डेफिनेशन आपको एक्सप्लेन की डिकम्पोजर की ताकि आपको फंजाई में डिकम्पोजर को समझने में आसानी हो. डिजीज कॉज्ड बाय द फंजाई. अब कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है फंजाई से? फंजाई कैन ऑल्सो ग्रो इन द ह्यूमन बॉडी एंड कैन कॉजेज द स्किन इन्फेक्शन. अभी हमने बात की थी ना कि फंगस लग जाता है नेल्स के अंदर या फिर हमारे पाँव के अंदर. एंड रिंग वॉर्म्स, आपने सुना होगा रिंग फॉर्म निकल आते हैं, छोटे छोटे से स्किन के ऊपर दाने टाइप के निकल आते हैं, किसी की भी बॉडी पे भी निकल आते हैं गर्मी पसीने की वजह से. दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द फंजाई. ओके बेटा. सो दीज डिजीज कॉज्ड बाय द फंजाई. Now, the last is the protozoa. This is the last kind of the microorganism. It is called the protozoa. You can see the different type of the protozoa on the screen. These are the different type of the shape. You can see the different type of the protozoa. This is the unicellular organism. Okay, beta. So, what is the protozoa? The protozoa are unicellular organism rather than like the bacteria. तो बैक्टीरिया की तरह ये यूनिसेलुलर होते हैं. इफ दे एंटर द बॉडी दे कैन लिव एंड ग्रो. जब हमारी बॉडी के अंदर ये दाखिल हो जाते हैं तो फिर ये रहते हैं, जिंदा रहते हैं, ग्रो करते हैं. दो ग्रो इन मॉइस्ट प्लेसेस एंड आर द कॉमनली फाउंड इन द वाटर. अब भाई ये कहाँ पाए जाते हैं प्रोटोजोआ? ये पाए जाते हैं मॉइस्ट प्लेसेस पे, यानी कि ऐसी जगह पे जो बहुत गीली होती हैं जगहें और पानी वाली जगहें होती हैं. ओके. नाउ
The protozoa dysentery. Dysentery is caused by the protozoan and so is the diarrhea. उल्टियाँ, मोशन, पेट में दर्द या sometime in the diarrhea, जब डायरिया में blood भी आने लगता है, that is called the dysentery. Okay, you can see in this picture the diarrhea and the dysentery. Dysentery is the also the form of the diarrhea. Diarrhea में vomiting and motions हो रहे होते हैं, but डिसेंट्री में क्या होता है बेटा, इसमें ब्लड भी आ रहा होता है, तो दिस इज कॉज्ड because of the protozoa. Okay, now the homework. This is your independent work. The homework is page number 18. Do question number 1, choose the correct answer. 1 to 4, not 1 to 5, 1 to 4 MCQs present in the page number 18. Question number 2, fill in the blanks. Page number 18. Question number 3, tick and cross present in the page number 18. ये आपको खुद करना है, 2 दफा आपको अपनी चैप्टर की रीडिंग करनी है, आपको लेक्चर को दोबारा बहुत अच्छे से सुनना है, एंड दैट you can able to solve this exercise. The homework copy work. Short question answer. What is the pasteurization? Number 2, what are the main kind of the microorganism? Answer present on the page number 12, 13, 14. Define the following term, the microorganism and microscope. Answer present in page number 12. Name 3 places where you find the bacteria. Answer present in page number 13 or slide. And how are the fungi useful for the human being? Give 2 examples. Answer present in page number 13, or you can see the answer on the slide. Okay, beta. Now, thank you so much and Allah Hafiz.